Hello everyone, this is Ishita and I am here today to discuss my strategy of cracking UGC NET examination. This was my first serious attempt and I managed to secure JRF by getting 99.6 percentile. And I managed to secure this percentile without coaching. Yes, help was taken by people by from internet, YouTube, books, but other than test series I did not pay for any coaching, and I studied on my own. So I am here to discuss what all did I do during my preparation and what all you can take from my preparation to add into your preparation. Okay, so let's start. So let's discuss what all is really required, because as you know this subject is very vast. Although like any other subject the number of units are same, but the depth that is required in every unit and every section is very wide and deep. So let us discuss one by one. There is no there should be actually no discussion about effort. I just wrote it just like that. Effort is required in any examination, whether it is a group A, B, C, D, any examination. So this is one of the exams where things are you are actually reaching the highest level of education in one subject that you can reach. So obviously naturally the exam becomes a little technical, and if you need hard work, so effort is obviously required. How much time did I take? So since I have a UPSC background, so I did not personally took a lot of time to prepare just for UGC, because when I was preparing for UPSC my optional was history. So history optional books and UGC books are almost same. So when I was preparing for UPSC I have given like 6 7 months entirely to the optional subject, and that is why when I came back for UGC exam, I did not take a lot of time while preparing because my sources were aligned and limited. I limited my sources. So time, I would say that if you are starting from basic, let's not kid ourselves. If you're starting from basics, I would say 7 months, 8 months is a minimum a person can do if you're starting from basics. And if you have, since it should not, okay, technically you should not be starting from basics because you've done your masters or you're doing your masters at least. So you have a history background, so you should not be starting from basics. So if you're studying nicely in your college and you have basic idea of history, I think you can do it in 5 to 6 months dedicated study for this exam. So I would say for time it should take 6 months for, and for people like me who have studied similar books multiple times earlier, I think you can manage in like 3 4 months. You should be able to manage in 3 4 months. But इससे कम तो आप मजाक कर रहे हो अपने साथ. That's it. Revision, since history is a fact based subject, fact based as in that you need to have a lot of facts memorized for your exam. This is such exam. UPSC में, for example, there are very conceptual questions, so you can manage even if you have a little idea of certain things. But they directly ask you questions based on a chronology of kings, chronology of battles, who came first, who went later, sort of like those things, travelers, you know, and their books. What are the chronology of books written in history? So it is a very fact based subject. So you need to have multiple revisions. I would say four to five revisions minimum for everything that you're going to read. And most important thing that I found and I myself thought that is very important is the notes. I guess without notes you cannot prepare for UGC NET history.
I am not anybody to speak on any other subject because I have not given that exam. But for history, I'm telling you, if you do not have notes, forget about the result. You're not going to get PhD category also. सो नोट्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. और वो नोट्स कैसे बनेंगे, पीवाईक्यू कैसे हेल्प करने, पीवाईक्यू की हेल्प कैसे लेनी है, बुक्स में कौन से नोट्स लेने हैं, दिस आई मेक अ सेपरेट वीडियो. बट to understand basic things, basic strategy, notes are something that you cannot skip. You know, I had notes even for my last day revision. Last day revision के लिए भी मैंने छोटा 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 एक डायरी में हर सेक्शन के लिए, for example I have ancient India. So ancient India के I took like 10 pages, 10 pages maximum, छोटे छोटे pages, 10 pages. उसमें मैंने किंग्स की क्रोनोलॉजी लिखी है, बैटल्स की क्रोनोलॉजी लिखी है. सो वो एक बार में बहुत जल्दी रिवाइज हो गया. और वो मैंने कब किया, वो मैंने लास्ट डे ही बनाए थे नोट्स. वो ऐसा नहीं था कि मैं डे 1 से एक छोटी सी डायरी ले लिया, उसमें छोटे 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 सब कुछ लिखती जा रही, वो डायरी भर जाएगी. तो आपने जब 4-5 बार रिवाइज कर लिया है तो आप देखोगे कि मेरे को कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं स्किप कर रही हूँ. मैं इसे रिवाइज ढंग से, मुझे मतलब लास्ट मिनट रिविजन लगेगा. सिर्फ उसी चीज़ का लास्ट डे का नोट्स होना चाहिए. नोट्स इन जनरल होने चाहिए हर सेक्शन के लिए. लास्ट डे पे आपको सिर्फ वही नोट्स के भी माइक्रो नोट्स बनाने हैं, और ऐसे नोट बनाने हैं कि आपने बस देखा और आप बस यू जस्ट पलटोइंग इट बेसिकली. ओके, ठीक है. सो टेस्ट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वाई टेस्ट आर इम्पॉर्टेंट, उसका रीज़न ये है कि एवरीथिंग जो भी आप एग्ज़ाम में जाओगे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने एंशियंट इंडिया के लिए आर एस शर्मा एंड उपिंदर सिंह पढ़ ली. अब आप एग्ज़ाम में गए हो. अब जो एग्जामिनर है वो सिर्फ एंशियंट इंडिया की इन 2 किताबों से बुक्स से क्वेश्चंस तो बनाएगा नहीं. ही इज़ गोइंग टू यूज़ मल्टीपल सोर्सेज, और आप पर्टिकुलरली उन मल्टीपल छोटे छोटे सोर्सेज के टूवर्ड्स नहीं जा सकते हो, वरना आप प्रिपेयर ही नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो टेस्ट हमें हेल्प करते हैं वो छोटे छोटे सोर्सेज आइडेंटिफाई करने के लिए कि हमारी प्रिपरेशन कहाँ लैग कर रही है. कि अगर मान लो मेरी बुक में कुछ एक सेक्शन अच्छे से नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो वो सेक्शन में कहाँ से करूँगी बेटर तरीके से. वो सेक्शन हो सकता है मुझे उसके लिए कोई दूसरी बुक लेनी पड़े. अगर बुक नहीं लेनी पड़े तो जो टेस्ट हैं उनके सॉल्यूशन से ही मैं वो प्रिपेयर कर लूँ. सो दिस इज़ हाउ टेस्ट्स आर इम्पॉर्टेंट. वो छोटे छोटे वैसे एरियाज़ को आपको दिखा देते हैं कि ये आपकी बुक में नहीं है, सो यू प्रिपेयर देम. तो ऑटोमेटिकली वाइल यू गिव योर टेस्ट यू गेट प्रिपेयर्ड, और ऑब्वियसली यू गेट टू नो वेयर यू स्टैंड, है ना. कि मतलब वो एक मुझे, आई गिव यू एन एग्जाम्पल. आई टुक टेस्ट बुक टेस्ट सीरीज़, क्योंकि यूजीसी एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है और टेक्स्ट बुक के टेस्ट भी ऑनलाइन होते हैं, तो उससे एक सिमुलेशन जो है वो मुझे मिल गया बहुत अच्छा. सो आई वुड recommend you to go for it if you are looking forward to a good test series. Textbook tests are good. I had this elite pass of that, so you can I did not take any video subscription or anything, but just for the tests I had subscribed it, so you can go for it. Strategy for each section. अब हर एक सेक्शन अलग है, हर एक सेक्शन की रिक्वायरमेंट अलग है, हर एक सेक्शन में क्वेश्चंस अलग तरीके के पूछे जाते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल एंशियंट है, एंशियंट में वो आपसे ज़्यादातर किंग्स की क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं, कि या फिर ट्रैवलर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं. तो आप ये सब कैसे प्रिपेयर करोगे. अगर आप मिडिवल में जाओगे तो फिर कौन से राजा ने कौन सी पॉलिसी लेके आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे दाग सिस्टम, जहरा सिस्टम, है ना, इक्ता सिस्टम किसने लाया, किसने अबॉलिश किया. मॉडर्न में बैटल्स बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं, कौन सी बैटल्स, कौन सी ट्रीटी साइन हुई कौन सी बैटल के बाद, है ना. एंड बेसिक क्रोनोलॉजी, है ना, कौन सा मास मूवमेंट था, कौन सा नहीं था, कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ. सो क्रोनोलॉजी तो मुझे ऐसा लगता है कि आई गेस क्रोनोलॉजी टेक्स अबाउट 40% ऑफ योर एग्जाम, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन कैलकुलेशन. मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि बिना क्रोनोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिस किए आपको नहीं जाना चाहिए एग्जामिनेशन में. और क्रोनोलॉजी भी सिर्फ वो ऐसी नहीं है कि वो उसने फर्स्ट एंग्लो मराठा, फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच और एंग्लो वडेवर मैसूर वॉर पूछ लिया, इनकी क्रोनोलॉजी बता दो, ये एक चैप्टर में कवर हो जाता है स्पेक्ट्रम के.
So they don't ask questions like that. They ask कि कोई एक रिफॉर्म आया तो वो कब आया, कोई एक रिवोल्ट हुआ तो वो कब हुआ, कोई एक बैटल हुई तो वो कब हुई, कौन सा वाइसरॉय कब था, ये सब एक ही क्वेश्चन में पूछ लेगा वो। तो आपको एक आइडिया होना चाहिए बेसिक अक्रॉस सेक्शंस में। तो आपको हर सेक्शन के लिए अलग स्ट्रैटेजी लगेगी, ये हमने देख लिया। देखिए कोचिंग की बात अगर करें तो इफ़ यू आर वन ऑफ द पर्सन हैव हु हैज़ अ हैबिट ऑफ रीडिंग एंड यू आर डिसिप्लिन्ड, दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रीड कर सकते हो और आप डिसिप्लिन से रीड कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने उपिंदर सिंह, आई वुड टेल यू, जब मैं ऑप्शनल के लिए तैयारी कर रही थी तो 3-4 बार पढ़ी थी, और जब मैंने यूजीसी के लिए नोट्स बनाए तो मैंने उपिंदर सिंह 3 बार पढ़ी है दोबारा फिर से। और उपिंदर सिंह सच अ हैवी बुक, आपको पूरी नहीं पढ़नी है। इफ़ यू गाइज वांट कि मैं उस पर भी कुछ एक हाउ टू रीड उपिंदर सिंह टाइप कुछ बना दूँ, सो यू कैन आस्क मी, आई कैन मेक दैट वीडियो ऑल्सो, बट that's a different thing. So coaching is required by people who are just starting from very basics. They do not have books and they don't have a habit of reading a lot. तो अगर आप ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जिसको रीडिंग पसंद है या रीडिंग आप कर लेते हैं, आपका यू आर गुड विथ रीडिंग, if you do it, you can do it on your own. I'll make a different book list video and where you can see the books and read. And if you're not somebody who is in a habit of reading और उसको चाहिए कि यार मुझे बस आप समझा दो, नोट से दो, मैं याद कर लूँगा, तो you can go for coaching always. बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बुक्स से पढ़ते हैं तो शायद रिटेन ज़्यादा रहता है, समझ में ज़्यादा अच्छे से आता है, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो है वो बहुत अच्छे से हो जाती है। रट्टे वाली चीज़ आपकी टेस्ट से एनीवे हो जाएगी, जो रट्टा आपको मारना है लास्ट डे या लास्ट वीक में या लास्ट मंथ में, वो आपका टेस्ट सीरीज से वैसे भी हो जाएगा, क्योंकि आप नोट्स बनाओगे एनीवे, चाहे आपने कोचिंग लिया चाहे नहीं लिया, यू आर गोइंग टू मेक नोट्स एनीवे। सो रट्टे वाला पार्ट उससे हो जाता है। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, क्योंकि सारी चीज़ें आप याद नहीं कर सकते हो। अगर आपको पता है कि यार ये वाली चीज़ अराउंड उस पीरियड में हुई थी और दूसरी वाली चीज़ अराउंड दैट पीरियड में हुई थी, तो मैं कैंसिल आउट करके, एलिमिनेशन करके मैं इस क्वेश्चन पे या इस ऑप्शन पे पहुंची। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्सेप्ट्स बहुत इजीली बिल्ड हो जाते हैं अगर आपने बुक्स खुद पढ़ी हैं तो। बट एनी वे, इफ़ यू आर अ पर्सन हु नीड अ हैंड होल्डिंग रेगुलरली, यू कैन गो फॉर कोचिंग। बट बिना कोचिंग के भी बहुत आराम से आप पेपर निकाल सकते हो, मैंने किया है, एंड विद माई ओन एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू दिस। कंप्लीट बुक लिस्ट वाली वाला जो पूरा सेक्शन है उसके लिए मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई है, you can refer to that video in I have put the link in the description box. You can go and check that video out. That's a complete book list I used to make notes and crack the examination. So this was it, and I think किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए, चाहे वो कोई सा भी एग्ज़ाम है, किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए you require effort, you require time, dedication and discipline. आपको ये पता होना चाहिए कि वाई आई एम डूइंग दिस, मैं ये क्यों कर रहा हूँ या क्यों कर रही हूँ। अगर वो वाई क्लियर नहीं है, अगर आप सिर्फ इसलिए आ गए हो कि यार कोई और एग्ज़ाम नहीं निकल रहा, लेट्स जस्ट डू दिस, गिव दिस, तो नहीं होगा। हिस्ट्री तो नहीं होगा, मैं बाकी सब्जेक्ट्स का नहीं बोल सकती हूँ, क्योंकि हिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट, इफ़ यू डू नॉट हैव पैशन and interest for this subject, this is going to bore the hell out of you. Okay, अगर आप ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मैं बोर हो जाता हूँ या बोर हो जाती हूँ, मुझसे याद नहीं होगा, याद तो खैर सबसे हो जाता है, ये सिर्फ कहने वाली बात है, मल्टीपल रिविजन से याद हो जाती हैं चीज़ें, और उतना ज़्यादा रट्टे वाला नहीं है सब्जेक्ट, बट आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो there are going to be problems for you, then this exam is not for you. Interest है तो you will sail through it very smoothly, very nice exam, and इसमें plus point है, negative marking नहीं है, which helps a lot.
ठीक है, so this was it in this video. For other videos, other topics, you can comment and tell me whether you require any assistance, and I'll make a video on that. Thank you.